देखो ਜਿਹੜਾ 7th ਚੈਪਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨੇਮ ਹੈਗਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ 9th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ 3rd ਚੈਪਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਨਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਜਸਟ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ 1,3 ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਆਰਾਮ ਨਾਲ 1 2 3 ਇਧਰ ਮੰਨ ਲਓ 1 2 3 ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ 1,3 ਲੋਕੇਟ करेंगे। जी मैं तुम्हें कहता कि मान लो 3,2 लोकेट करो तब से बहुत इजीली लोकेट करते करते इधरों 3 इधरों 2 ते आ गया 3,2। ये केड़ा प्लेन होए करदा इनु बोले करदे ਆਪਾਂ कार्टेशियन प्लेन। केड़ा प्लेन होए करदा कार्टेशियन प्लेन। ਆਪਾਂ ਨੇ कार्टेशियन प्लेन ਚ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਚ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਮੇਨ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਇੱਕ डिस्टेंस फार्मूला ਇੱਕ सेक्शन फार्मूला। ਜਿਹੜੀ ਫਸਟ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਤੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ 9th ਕਲਾਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਸਿੱਖਾਂਗੇ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਰਨ ਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਾਰਟੇशियन प्लेन ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ कि अगर आपने 1,3 ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਹੈ x ਦੀ ਤਰਫ 1 ਤੇ ਇਧਰੋਂ 3 1,3 ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 3,2। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x1 y1 ਕੋਈ ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x2 y2 ਇਹ x1 y1 ਕਿਵੇਂ ਲਾਈਕ ਐਜ਼ 1,3 ਤੇ 3,2 ਲਗਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x1 y1 ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ x2 y2। अगर ये दोनों ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस फाइंड करना है और डिस्टेंस फार्मूला ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਹੁਣ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿਵੇਂ। ਆਪਣੇ ਚ ਕਰਤਾ ਲਿੱਤੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਹੈ ਇੱਕ x1 y1 ਹੈ ਇੱਕ x2 y2 ਹੈ। अगर ये दोनों ਵਿੱਚ डिस्टेंस पता करना है ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਵੇਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 1,3 ਤੇ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 3,2। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲੱਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਕਿਵੇਂ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰੋਗੇ ਇਹ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡਾ x1 ਹੈ ਇਹ y1 ਹੈ ਇਹ x2 ਹੈ ਇਹ y2 ਹੈ। x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ तो तो कितना का चेक करो 3 1 2 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस प्लस माइनस माइनस -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ तो कितना आ गया 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 -1 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 1 कितना आ गया √5। मतलब ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ डिस्टेंस कितना है √5 ਦਾ डिस्टेंस। समझ सकते मैं ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਪੁਆਇੰਟ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ लेकिन अगर इन्ना ही पॉइंट ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ डिस्टेंस फाइंड करना है तो उसका की फार्मूला है x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਰੂਟ। ਲਾਈਕ ਐਸੇ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ 3 1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस 2 3 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਰੂਟ। ਇਹ ਆਪਣਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਵਿੱਚ डिस्टेंस ਆ ਗਿਆ। लेकिन ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਆਪਾਂ ਡੈਪਥ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ प्रूफ इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन इन्हों फील करने वास्ते बहुत जरूरी है ताकि तुम्हें पता लगे कि आप किसी प्रकार की कोई रोड लर्निंग नहीं कर रहे। ठीक है थोड़े कोल एक पॉइंट है ये x1 y1 कोई भी लगा लो कि मान लो 3,2 3,5 कोई भी पॉइंट है थोड़े कोल एक x1 y1। उसी प्रकार थोड़े कोल कोई और पॉइंट है मान लो x2 y2। तुसी ये दोनों च डिस्टेंस पता करना है ये दोनों च डिस्टेंस पता करना है। ये x1 y1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਜੋ ਇਸ ਦਾ a ਵਾਲਾ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਹੈ ਇਹ x1 y1 ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ मतलब कि a वाली चीज की है अपनी x1 ਤੇ अपनी a वाली चीज की है y1। उसी प्रकार a वाली चीज की है थोड़ी x2 ਤੇ जो a वाली चीज है ये थोड़ी हैगी है। ठीक है अपनी की चीज फाइंड करनी है a वाला डिस्टेंस फाइंड करना है a b डिस्टेंस फाइंड करना मतलब a है ए बी है अपने ए बी डिस्टेंस फाइंड करना। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਅਗਰ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰਦਾ
ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ x2, ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ x1, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬਚ ਗਈ, ਇਹ ਕੀ ਬਚ ਗਈ ਦੱਸੋਗੇ ਜਰਾ? ਇਹ ਪੂਰੀ x2 ਹੈ, ਇਹ x1 ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਬਚ ਗਈ? x2 x1 ਬਚ गई। ये पूरी x2 है, पूरा तो रिकॉर्ड देखो ये पॉइंट x2 है, ये पूरी x2 है, ये x1 है, तो डिस्टेंस कितना बच गया? x2 x1, मतलब जो a वाला डिस्टेंस है कितना है? x2 x1। उसी प्रकार ये चीज चेक करो, ये पूरी है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y2, a वाली चीज है ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ y1, ਤਾਂ जो a वाली चीज है ये ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈਗੀ? y2 y1, क्योंकि ये पूरा डिस्टेंस y2 है, ये y1 है, तो ये वाला डिस्टेंस की बच गया? ये मान लो 5 सेंटीमीटर है, ये 3 सेंटीमीटर है, तो 2 सेंटीमीटर बच गया, 5 चो 3 माइनस कितना। उसी प्रकार ये y2 है, ये y1 है, तो ये वाली चीज कितनी आ गई अपनी? y2 1। ਹੁਣ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ। ਇਸ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ a वाली साइड गिवन है x2 x1, a वाली साइड गिवन है y2 y1, ਇਹ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਤਾਂ ਜੋ AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਇਧਰ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ P ਨਾਮ ਦੇ ਦਈਏ, AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿਸ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਊਗਾ? BP ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ AP ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਜਿਹੜਾ AB ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਹਾਈਪੋਟੇਨਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ? ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ ਬੇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ, मतलब BP ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ AP ਦਾ ਸਕੁਅਰ। ਤੇ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਜੋ BP ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? BP ਕਿੰਨੀ ਹੈ? y2 y1, ਤੇ ਜੋ AP ਹੈ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ? x2 x1। तो जो AB ਦਾ AB किस ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ, ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਮਰਜ਼ੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ प्लस y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ। ਸਮਝ ਸਕਦੇ? मतलब ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। मतलब ਇਸ ਨੂੰ ਫੀਲ ਕਰੋ ਵੀ ਕਰਿਆ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਤੇ ਕੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਰੂਟ। ਤੇ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਸ ਦਾ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਸੀ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਇਹ ਆਈ ਸੀ x2 x1, ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਆਇਆ ਸੀ y2 y1 ਬਾਈ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ। ਇਹ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਕਲੀਅਰ? ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਮੈਂ ਕੁਝ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਸ ਲਿਖਵਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਧਰੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ, ਇਧਰੋਂ ਮੈਂ ਕਰੂੰਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਨਸਰ ਮੈਚ ਕਰੋ। 2,3 4,1 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਰਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇਖੋ, ਇਧਰ ਡਿਸਟੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਕਰਾਂਗੇ? ਅੰਡਰ ਰੂਟ x2 x1 x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ। ਕੀ ਹੈ? x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਰੂਟ। ਤਾਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 4 2 ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ? 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ प्लस माइनस माइनस 3 चो 1 गया 2, बड़े के माइनस का निशान है ऊपर स्क्वायर, तो और तो कितना गया? 2 दा स्क्वायर 4 माइनस 2 दा स्क्वायर 4 4 प्लस 4 8 कितना गया? 2√2 यूनिट। क्योंकि ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस के पीछे की लगाओगे? यूनिट, क्योंकि उन्हें तो पता नहीं कि मीटर च है, सेंटीमीटर च है, किलोमीटर च है, किस चीज च है, इस करके तुसी जस्ट की लगा दोगे? यूनिट। बोलो पहले पार्ट किसे लगाओगे? नेक्स्ट चेक करो, लाइक तुसी डिस्टेंस पता करना है -5,7 ਤੇ -1,3 ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਚ ਡਿਸਟੈਂਸ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਜਰਾ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੇਮ ਐਸ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅੰਡਰ ਰੂਟ x2 ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਧਰ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਸਾਰੇ, x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪਲਸ y2 y1 ਦਾ होल स्क्वायर। तो चेक करो की आ गया? ये माइनस माइनस की बन गई प्लस होल स्क्वायर प्लस एक किया 3 7 का होल स्क्वायर। तो चेक कर लो की आ गया? प्लस माइनस माइनस 5 चो बन गया 4 ऊपर स्क्वायर प्लस प्लस माइनस माइनस 7 चो 3 गया 4 बटे के माइनस का ऊपर स्क्वायर। तो और तो कितना आ गया? 4 दा स्क्वायर 16 4 दा स्क्वायर 16 कितना गया? अंडर रूट 32 ਤੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ 4√2 ਕਿਉਂਕਿ 32 ਦੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਫੈਕਟੋਰੀਏਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ? 2 ਦੀ ਪੇਅਰਿੰਗ ਬਣ ਗਈ 2
जिन्ना सोल्व होंदा उन्ना सोल्व करा करो 4√2 यूनिट। समझ आ गई? तुम फील होना चाहिए ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਪਣਾ ਚੈप्टर ਦਾ ਨੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਦੋ ਟੌਪਿਕ ਨੇ डिस्टेंस फार्मूला सेक्शन फार्मूला। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ डिस्टेंस फार्मूले ਤੇ ਹੈ। डिस्टेंस फार्मूला मतलब ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੇ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲਾਈਕ 2,3 1 2 3 4 1 2 3 4 ਲਾਈਕ ਇਸ ਇੱਕ 2,3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ 2,3 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਇੱਕ 4,1 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 9th ਕਲਾਸ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਡਿਸਟੈਂਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ। ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਆਈ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਬੇਸ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ x2 x1 ਇਹ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ y2 y1 ਤੇ ਉਰੇ ਪਾਈਥਾਗੋਰਸ ਥਿਓਰਮ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। किसी ਨੂੰ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਕਲੀਅਰ ਕੋਈ ਦੋ ਪੁਆਇੰਟਸ ਦੇ ਕੇ नेचुरल डिस्टेंस पता करना बहुत ही सस्ता क्वेश्चन है x2 x1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ y2 y1 ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਪੂਰੇ ਦਾ ਰੂਟ ਜਸਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਕਰਿਆ ਤੇ ਆਨਸਰ ਲਿਖਣਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ 7.1 ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ 3 ਪਾਰਟ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਚ ਫਸਟ ਪਾਰਟ ਸੀ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਪਾਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। थर्ड पार्ट देखो की है कोई एक पॉइंट है ए बी कोई एक पॉइंट है माइनस ए कोमा माइनस बस ए बार क्वेश्चन च एक चीज चाहिए अभी ध्यान नाल करो प्लस माइनस ध्यान नाल और कोई गलती नहीं हो सकती अंडर रूट x2 मतलब माइनस ए माइनस x1 मतलब a द होल स्क्वायर प्लस y2 मतलब माइनस माइनस y1 मतलब b दा होल स्क्वायर चेक करो समझ तो और कितना आया अंडर रूट माइनस माइनस प्लस a 2a माइनस 2a दा होल स्क्वायर प्लस माइनस 2b दा होल स्क्वायर चेक कर लो माइनस का स्क्वायर प्लस 2 दा स्क्वायर 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। हुन कृपया करके एक गलती ना कर दियो कदे कह दो स्क्वायर नाल रूट कट गया ऐजा नहीं हुंदा ठीक है। ज्यादा तो ज्यादा ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ 4 ਕਾਮਨ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅੰਦਰ ਬਚੂਗਾ a² + b² ਤੇ 4 ਦਾ ਰੂਟ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ 2a² + b² ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਜੇ a ਵਾਲੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਰੂਟ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਰੇ a² + b² ਹੈ ਤੇ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਆਪਣਾ a² + b² ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ a² + b² + 2ab ਹੁੰਦਾ ਹੈ इस करके तुसी इनु पूरे दा स्क्वायर नहीं पा सकदे ता स्क्वायर नाल रूट भी कैंसिल नहीं कर सकते ते पीछे तुसी लिख दोगे यूनिट क्योंकि आपा की फाइंड कर रहे हैं डिस्टेंस समझ ये जे होल स्क्वायर से रूट कट करना फिर ऊपर फिर ए वाली चीज बचेगी 2 * a + b स्क्वायर नाल अगर रूट कट देने तो ए वाली चीज बचा नहीं ये माइनस a दा होल स्क्वायर माइनस a माइनस a दा होल स्क्वायर ऊपर है हां जी माइनस b दा हां जी होल स्क्वायर ना रूट नहीं ਵੀਰੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਇਸ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਪੂਰੇ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਜੇ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਪੁੱਟਦਾ ਉਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੁਅਰ ਹੁੰਦਾ ਫੇਰ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਗਲਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਰੇ ਵਾਲਾ ਸਟੈਪ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ किस चो की कॉमन निकलवा देखो इस चो a पूरे a हैगा पूरे a हैगा कॉमन वास्ते दोनों को होनी चाहिए ना चीज पूरे तो a हैगा लेकिन पूरे a हैगा मिस्टेक पूरे की होंदे पूरे की करदे ने a स्क्वायर + b स्क्वायर a + b दा होल स्क्वायर पा दिंदे ध्यान रखो a स्क्वायर + b स्क्वायर a + b दा होल स्क्वायर नहीं हुंदा a + b दा होल स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2ab हुंदा है समझ आ गई लाइक एज देखो 2 दा स्क्वायर + 3 दा स्क्वायर अपना 5 दे स्क्वायर दे इक्वल नहीं हुंदा ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿ 2 + 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋ ਕਿਉਂਕਿ 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 4 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9 ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 13 ਤੇ 2 + 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 5 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ 25 ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ a² + b ਸਕੁਅਰ ਨੂੰ a + b ਦਾ ਹੋਲ ਸਕੁਅਰ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਾਊਟ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ एग्जांपल नंबर 1 है कि डू द पॉइंट्स
3,2 मान लो कोई A पॉइंट है 3,2, कोई B पॉइंट है -2, -3, कोई C पॉइंट है 2,3। किने की चेक करो कि A वाले पॉइंट ट्रायंगल बनाते ने। अपन चेक करना है कि A B C की फील करो क्वेश्चन में 3,2 मान लो 1 2 3 ਇਹ ਲੋਕੇਟ नहीं करना, सिर्फ मैं तुम्हें फील कराने वास्ते दिखा रहा कि ਤੁਸੀਂ क्वेश्चन ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਵੀ क्वेश्चन ਕਰ ਕੀ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ना तो ही करना ना ही इंपॉर्टेंट, लेकिन समझना बहुत जरूरी है क्योंकि अगर थोड़े माइंड से पिक्चर बनन लगी तो थोड़ा हमेशा लिए लर्न हो जाएगा, हमेशा लिए समझ आ जाएगा। कोई A पॉइंट है 3,2, कोई A पॉइंट है 3,2, कोई B पॉइंट है -2, -3, -2, -3, कोई B पॉइंट है -2, -3, कोई C पॉइंट है 2,3, कोई C पॉइंट अपना 2,3। चेक करना है कि ए तीना नाल ट्रायंगल बन रही है, जिसको के बन रही है, जरूरी नहीं है तो मैं मिलाया है कि तवरे ए साइड छोटी रह जाए बड़ी रह जाए कैमे हो जाए। ट्रायंगल बनन दी की कंडीशन होंदी अपन छोटे होंदे निक्के निक्के होंदे पढ़े हुए 6th 7th दे विच। अगर ਤੁਹਾਨੂੰ कोई 3 पॉइंट्स दिते हैं 3 साइड्स दिती है बहुत अच्छे। ट्रायंगल उदो ही बन सकती है, मान लो कोई ट्रायंगल ए बी सी अगर बननी है, किसी भी ट्रायंगल च तुसी चेक कर लियो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। इक्वल भी नहीं होना चाहिए, ऐ नहीं है कि टू साइड्स दा सम तीसरे दे इक्वल है फिर भी ट्रायंगल नहीं बन सकदी। टू साइड्स दा सम हमेशा थर्ड साइड तो कितना चाहिए है बड़ा होना चाहिए। सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड हमेशा। मान लो कि अगर एक ट्रायंगल है जिदी साइड है 3 एक है 4 एक है 6, जिवें चेक करने कि ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती। 3 + 4 करे कितना गया 7, क्योंकि 3 + 4 कितना 7, 6 तो बड़ा है ओके है। 3 + 6 कितना 10, 4 तो बड़ा है ठीक है सॉरी 9, 6 + 4 कितना 10 और 3 तो बड़ा है ठीक है। लाइक अगर मैं इसकी जगह पे 2 करता उन चेक करो 3 + 2 कितना 5, 4 तो बड़ा है ओके, 4 + 2 कितना 6, 3 तो बड़ा है ठीक है। मतलब हर एक तरह दी साइड्स दा जो सम है ए दोनों दा सम कितना इस तो बड़ा है, ए दोनों सम कितना इस तो बड़ा है ते ए दोनों सम कितना इस तो बड़ा है। या कुल मिला के कह सकते हैं दो छोटी साइड्स दा सम, दो छोटी साइड्स दा सम अगर तीसरी तो बड़ा आ जाए तो वो ट्रायंगल बन सकती है वरना नहीं बन सकती। मतलब अगर मैं कहता कि एक साइड है 4 एक है 5 एक है 9 चेक करो ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं। पूरे 4 5 दा सम कितना करना है तीसरी साइड तो बड़ा नहीं है तो ट्रायंगल बन ही नहीं सकती। तुसी जोर लगा लो एक लाइन मार लो 4 सेंटीमीटर दी, एक मार लो 5 सेंटीमीटर दी, दूसरी 9 सेंटीमीटर दी मारोगे तो ट्रायंगल बन ही नहीं समझ सकी, ट्रायंगल बन ही नहीं पाओगी। समथिंग है जब कोई पॉइंट चलता है समझ सही है। मतलब कि ट्रायंगल उदो ही बन सकती है व्हेन सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैंने चेक करना है कि ये तीनों पॉइंट्स ना ट्रायंगल बन सकती है कि नहीं बन सकती। कुल मिला के मैंने की चेक करना है कि मेरा टू साइड्स का सम मैं ए बी साइड फाइंड करदा, बी सी फाइंड करदा, सी ए फाइंड करदा। अगर सम ऑफ टू साइड ग्रेटर देन थर्ड साइड आ गया तो मतलब ट्रायंगल बन जूगी वरना ट्रायंगल नहीं बनेगी। अब करिए ए बी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, बी सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं, ए सी डिस्टेंस फाइंड करते हैं। तो चेक करते हैं टू साइड्स का सम थर्ड साइड तो ग्रेटर है या नहीं। पहले ए बी डिस्टेंस की लिखूंगा -2 माइनस देखो पहला ए पॉइंट किएगा x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। यहाँ पे ab फाइंड कर रहे हैं, ab के फाइंड कर रहे हैं अंडर रूट x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square। तो चेक करो कितना आ गया माइनस माइनस प्लस 2 3 5 -5 the square प्लस -5 the square तक कितना आ गया रूट 25 प्लस 25 तक कितना चेक करो रूट 50 5 रूट क्लियर है निकल। ए बी साइड फाइंड कर दिया हम लोग, यहाँ पर बीसी साइड फाइंड करते हैं। बीसी साइड की यहाँ पे चेक करो 2 माइनस 2 द स्क्वायर क्योंकि x2 माइनस x1 द होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 द होल स्क्वायर। तो चेक करो कितना आ गया अंडर रूट ए माइनस माइनस होगी प्लस 2 प्लस 2 द होल स्क्वायर प्लस ए माइनस माइनस होगी प्लस 3 प्लस 3 द होल स्क्वायर 2 प्लस 2 4
द होल स्क्वायर प्लस 3 6 द होल स्क्वायर ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 16 प्लस 36 मतलब कितना आ गया रूट 52 कितना आ गया रूट 52 मतलब क्या सकते हो सी 2 रूट 13 कितना आ गया 2 रूट 13 उस तो बाद सेम एज AC साइड कर लो CA कह दो AC कर लो एज यू विश मान लो CA साइड चाहे x1 y1 इनो मान लो चाहे x1 y1 इनो मान लो कोई दिक्कत नहीं है उस पर सेम आऊंगा लेकिन ये ना कर दियो x1 इनो मान लो y1 इनो मान लो ये मिस्टेक ना कर दियो या तो x1 y1 इसनो मानियो या x1 y1 इनो मानियो मान लो x1 x2 minus x1 the whole square x2 minus x1 the whole square plus y2 minus y1 the whole square y2 minus y1 the whole square तो चेक करो क्या आ गया 2 minus 3 कितना हो गया minus 1 the whole square 3 minus 2 1 the whole square कितना आ गया रूट एक साइड आ गई रूट 2 एक साइड आ गई मान लो रूट 50 एक साइड आ गई रूट 52 ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਜਰ ਮਿਸਟੇਕਸ ਕਈ ਜਣੇ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸੋਚਣਗੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਰੂਟ 50 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ ਰੂਟ 2 ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਐਡ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆ ਰੂਟ 52 टू साइड्स ਦਾ ਸਮ ਹਰ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਲੇਕਿਨ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਰੂਟ ਚ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਰੂਟ ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਰੂਟ 4 ਪਲੱਸ ਰੂਟ 9 ਕਰੋ ਜੇ ਪਲੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਰੂਟ 13 ਆਉਂਦਾ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ इस करके रूट से प्लस नहीं होए करती जब सोचो रूट 50 प्लस रूट 2 रूट 52 हो गया कि टू साइड्स ਦਾ ਸਮ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਉਰਦਾ ਟੂ ਸਾਈਡ ਦਾ ਸਮ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਇਹ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਉਰੇ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਹੈ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਗ੍ਰੇਟਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਰੇ ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ रूट 50 ਦੀ रूट 52 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ रूट 2 ਦੀ इस दी वैल्यू लाइक एज 5 पता ही है रूट 2 दी वैल्यू 1.414 उस दी मल्टीप्लाई कर दो ਤੁਸੀਂ करके देख लो मैं देख के निकलेगा ठीक है ना पता लग गया अपन डिस्कस कर लेंगे रूट 50 आ रहा है 7.07 जो रूट 52 आ रहा है वो आ रहा है 7.21 जो रूट 2 आ रहा है वो आ रहा है 1.41 अब चेक करो टू साइड्स का सम ग्रेटर देन थर्ड साइड आएगा कोई भी टू छोटी साइड्स का सम करके देख लो ए दो छोटी साइड का सम है ए दोनों सम करो थर्ड साइड तो बड़ा आ रहा है AB प्लस AC करो तो ग्रेटर आ रहा है BC तो सम ऑफ टू साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड सो ट्रायंगल कैन फॉर्म द ट्रायंगल बन सकता है समझ सकते हुन ट्रायंगल बनता गई लेकिन इन्होंने पूछा केड़ी ट्रायंगल है ਇਹ ਕਿਹੜੀ ट्रायंगल है ਦੁਆਤੀ ਸੁਣੋ ਭਾਈ अपन चेक करना है ट्रायंगल बन सकते कि नहीं अपन AB फाइंड कीती BC फाइंड कीती AC फाइंड कीती ए भी आ गई रूट 50 बी से आ गई अपनी रूट 52 ते सी आ गई रूट 2 इस दी वैल्यू आ गई 7.07 इस दी वैल्यू आ गई 7.21 इस दी वैल्यू आ गई 1.41 दो छोटी साइड्स का सम करके देख लो थर्ड साइड तो बड़ा है तो ट्रायंगल बन सकता है ट्रायंगल तो बन गई लेकिन केडी ट्रायंगल बनोगी वो चेक एक तो उसे डायरेक्ट फील करो रूट 50 प्लस रूट 2 का प्लस नहीं हो सकता लेकिन जे ਤੁਸੀਂ रूट 50 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕਿੰਨਾ ਆਜੂਗਾ 50 रूट 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰ ਦੋਗੇ ਕੀ ਆਜੂਗਾ 2 रूट 52 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਕੀ ਆਊਗਾ 52 ਦੋ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਸਮ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਹੈ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਫੀਲ ਕਰੋ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ रूट 50 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ रूट 2 ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਹੈ रूट 52 ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਲੇਕਿਨ इस द स्क्वायर इस द स्क्वायर ए दोनों दे स्क्वायर ਦਾ ਸਮ ਇਸ ਦੇ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ रूट 50 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਜੂਗਾ 50 रूट 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਆਜੂਗਾ 2 ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਰੋਗੇ ਨਾ 52 sum of the square of two sides is equal to the square of the third side so it is a right angle triangle ये केड़ी है right angle समझ सही फील होया क्वेश्चन की ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਸੀ ट्रायंगल बन सकते कि नहीं सिर्फ एक ही क्वेश्चन नहीं समझना इस क्वेश्चन च अपन ने काफी सारे क्वेश्चन कंसीडर करने हैं कांसेप्ट समझो ताकि इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आ जाए ਤੁਸੀਂ बहुत ईजी तरीके के नाल अटेम्प्ट कर सको ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ट्रायंगल बन सकती है या नहीं ट्रायंगल ਉਹਦੀ ਬਣੂਗੀ ਜਦੋਂ ਟੂ ਸਾਈਡਸ ਦਾ ਸਮ ਥਰਡ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ ਵੱਡਾ टू साइड्स ਦਾ ਸਮ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ AB BC ਹੀ AC ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ वैसे तो हर तरह की दो साइड्स का सम थर्ड साइड तो बड़ा होना चाहिए या इन शॉर्ट ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ दो छोटी साइड्स का सम करके देख लो
क्योंकि जो दो छोटी साइड का सम थर्ड साइड तो बड़ा है तो बाकी तो नहीं आने तो तुसी तो पूरे ट्रायंगल बन सकदा अगर ट्रायंगल बन गई अगर उसदी तीनों साइड्स इक्वल है थ्री साइड्स इक्वल है तो तुसी कह दोगे कि ट्रायंगल है इक्विलैटरल ट्रायंगल है अगर उसदी टू साइड्स इक्वल है तो तुसी कह दोगे नो आइसोसेलेस ट्रायंगल अगर उसदी नो साइड इक्वल है कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो एक बार ये चेक कर लियो कि दो साइड्स दा सम दो साइड दे स्क्वायर दा सम तीसरी साइड दे स्क्वायर दे इक्वल है यानी जे है तो केड़ी है राइट एंगल ट्रायंगल है राइट एंगल ट्रायंगल है वरना वो केड़ी है स्केलन ट्रायंगल है केड़ी है स्केलन ट्रायंगल जे अपन पिछली कितनी है वो स्केलन राइट एंगल ट्रायंगल तो है ही जो साइड से बेस ते कहनो वो स्केलन ट्रायंगल भी है क्योंकि ਆਪਾਂ ट्रायंगल ਨੂੰ टू बेस ਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਕ ਐਂਗਲ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡਸ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਜੋ ट्रायंगल ਹੈ ਉਹ ਸਕੇਲਨ ट्रायंगल ਹੈ ਤੇ एंगल ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸਾਈਡ है वो ट्रायंगल ਕਿਹੜੀ है राइट एंगल ट्रायंगल समझ आ गई जो पिछले अपन ट्रायंगल बनाई है वो स्केलन भी है मोर ओवर राइट एंगल ट्रायंगल भी है समझ आ गई कोई डाउट हो इस चीज सेकंड एग्जांपल के शो दैट 1,7 4,2 -1, ਤੇ -4,4 ਕਿਨੇ ਸ਼ੋ ਕਰੋ ਇਸ ਸਕੁਅਰ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਨੇ ਕਿਸ ਦੇ ਵਰਟਿਸਿਸ ਸ਼ੋ ਕਰਨੇ ਆਪਣੇ ਸਕੁਅਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਚ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਬਣਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ पूरे स्क्वायर चेक होने की शो करने क्या है कई बार चेक करने कहेंगे कि चेक करो ये पैरेललोग्राम है या नहीं कई बार कहेंगे चेक करो ये रेक्टेंगल है या नहीं कई बार कहेंगे चेक करो कि रोम्बस है या नहीं ते कई बार कहेंगे चेक करो स्क्वायर है या नहीं ते कई बार कहेंगे चेक करो कि क्वाड्रिलेटर भी है या नहीं क्योंकि पहली गल जिन्होंने ये नहीं पता की होंदियां ने चारों चीज़ां पहले करी हल कर सुन लो क्वाड्रिलेटर की होता है एनी पॉलीगन विच हैव फोर साइड्स क्वाड्रिलेटर की होता है वो पॉलीगन जिहदी फोर साइड्स है उन्होंने बोला जाता है क्वाड्रिलेटर वो पॉलीगन जिहदी फोर साइड है उन्होंने की बोला जाता है क्वाड्रिलेटर क्वाड्रिलेटर दी 6 टाइप्स होंदियां ने स्क्वायर रेक्टेंगल रोम्बस पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम और कांच क्वाड्रिलेटर की होता है एनी पॉलीगन विच हैव फोर साइड्स ते इन्ना दी भी सारे दी फोर साइड्स ने लेकिन हर एक दी फोर साइड्स तो है ही लेकिन इन्ना तो इलावा कुछ और प्रॉपर्टीज भी है क्या अगर तुहानू कोई 4 पॉइंट देते ते चेक करना है कि वो पैरेललोग्राम है या नहीं तो तुसी की चेक करोगे बिल्कुल ध्यान नाल सुनियो एक क्वेश्चन च अपने काफी सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट सब तो पहले तुसी की चेक करो ए बी बी सी सी डी डी ए बी साइड फाइंड कर लो बी सी साइड फाइंड कर लो सी डी फाइंड कर लो डी ए फाइंड कर लो ठीक है अगर ए बी सी डी इक्वल है अगर ए बी ते सी डी इक्वल है ते ए डी ते बी सी इक्वल है ए बी ते सी डी इक्वल आ गए ए डी ते बी सी इक्वल आ गए फिर चेक करो डायगोनल सुनो ध्यान दो कांसेप्ट समझो अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आई अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल नहीं आई दैट्स मीन वो पैरेललोग्राम है दैट्स मीन क्या है पैरेललोग्राम है क्योंकि पैरेललोग्राम दी अपोजिट साइड्स ता इक्वल होंदियां ने लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं अगर ये पैरेललोग्राम होगी तो ये अपोजिट साइड्स ता इक्वल होंगे लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं होंगे अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई ते डायगोनल भी इक्वल आ गए तो की होगा रेक्टेंगल की होगा वो रेक्टेंगल कि ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ 4 पॉइंट दे देंगे ते चेक करन कहेंगे कि देखो ये पैरेललोग्राम है रोम्बस है स्क्वायर है रेक्टेंगल है की है ਤੁਸੀਂ चारों साइड फाइंड करोगे ते दोनों डायगोनल फाइंड करोगे अगर सिर्फ और सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आई दैट्स मीन हो पैरेललोग्राम अगर अपोजिट साइड्स इक्वल आ गई तो दोनों डायगोनल इक्वल आ गए दैट्स मीन हो रेक्टेंगल और अगर सिर्फ चारों साइड्स इक्वल आई डायगोनल इक्वल नहीं आए अगर सिर्फ और सिर्फ चारों साइड इक्वल आई डायगोनल इक्वल नहीं आए दैट्स मीन हो रोम्बस अगर चारों साइड्स भी इक्वल आ गई
दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए दैट्स मीन की है ਤੇ ਇਹ ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਐਵੇਂ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਇਕੁਅਲ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚੇ ਹਲਕੀ ਚ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਮੈਂ ਕਿਉਂਕਿ ਡੈਪਥ ਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਪਿਛਲੀ ਕਲਾਸਿਸ ਚ देखो जो पैराग्राम होता है उसकी शेप कुछ इस प्रकार देती है समथिंग में बिल्कुल प्रॉपर नहीं बनाया इसकी अपोजिट साइड्स ਤਾਂ इक्वल ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ लेकिन ये साइड्स परपेंडिकुलर नहीं ਹੁੰਦੀ परपेंडिकुलर ना होने की वजह तो ये डायगोनल देखो कितना बड़ा है तो ये डायगोनल की है छोटा है कि अगर ये 4 पॉइंट्स पुट सके अपन देखा कि अपोजिट साइड से इक्वल है लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं है दैट्स मीन की है पैरेललोग्राम हुन रेक्टेंगल कुछ इस शेप चेक करो इधर अपोजिट साइड्स तक इक्वल है तो मोर ओवर डायगोनल भी देखो इक्वल लेंथ दी है क्योंकि ए एंगल की है 90 डिग्री है रेक्टेंगल से वाला एंगल कितना है 90 डिग्री होता है मतलब अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई तो मोर ओवर ए डायगोनल भी इक्वल आ गए दैट्स मीन की है और अगर हुन रोम्बस देखो अगर चारों साइड्स इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल इक्वल है क्योंकि देखो इधर डायगोनल एक छोटा है एक बड़ा है क्योंकि 90 डिग्री नहीं है तो एक ही होगा रोम्बस और अगर इधर चारों साइड्स भी इक्वल आ गई तो दोनों डायगोनल भी इक्वल आ गए क्योंकि बिल्कुल 90 डिग्री है इधर डायगोनल भी इक्वल आ गए ये तो आंसर क्यों साइड से इक्वल नहीं होंगे डायगोनल की मान लो साइड आ गई 5 5 5 5 कि डायगोनल भी 5 5 होंगे एम नहीं कि डायगोनल साइड से इक्वल आ चुकी तो हो भी नहीं सकते कभी डायगोनल साइड दे इक्वल क्योंकि फिर ਉਹਦਾ ट्रायंगल ही नहीं बनेंगे क्योंकि फील करो कि अगर ए साइड भी 5 है ए साइड भी 5 है जे ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ए भी 5 होगी ये हो सकता है क्यों नहीं हो सकता है पूरे क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम नहीं लगनी क्योंकि ए 90 डिग्री ਹੁੰਦਾ है तो रे हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर अपना टू साइड के स्क्वायर के सामने इक्वल नहीं है ठीक है तो मतलब ज्यादा डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है हौली हौली अपन चले जावांगे लेकिन एक बार ये गल समझो कि अगर सिर्फ अपोजिट साइड्स इक्वल आई दैट्स मीन की हुआ पैरेललोग्राम अगर अपोजिट साइड्स भी इक्वल आ गई तो डायगोनल भी इक्वल आ गए दैट्स मीन हुआ रेक्टेंगल अगर चारों साइड इक्वल आ गई लेकिन डायगोनल इक्वल नहीं आए तो हुआ रोम्बस अगर चारों साइड इक्वल आ गई तो डायगोनल भी इक्वल आ गए तो की हुआ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਕੇਸ ਛੱਡਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਬਣੂਗੀ ਵੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਾਂਗੇ उसका समझ सकी ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਵੀ ਗਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ 1,7 ਇੱਕ ਹੈਗਾ 4,2 ਇੱਕ ਹੈਗਾ -1, -1 ਇੱਕ ਹੈਗਾ -4,4 ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ डिस्टेंस फाइंड करो ਇਹ डिस्टेंस फाइंड करो ਇਹ डिस्टेंस फाइंड करो ਇਹ डिस्टेंस किसी ने फाइंड किया डिस्टेंस कितना है 2 रूट 17 रूट 34 आ गया चलो मान लेते हैं ए साइड भी रूट 34 ए रूट 34 ए भी रूट 34 ए भी रूट 34 चारों साइड्स इक्वल आ रही है तो डायगोनल चेक करो डायगोनल कितना आ रहा है रूट 68 दो साइड से जो भी चेक कर लो हां जी रूट 68 तो फिर दो साइड से समझ होगा ये डायगोनल चेक करो कितना है रूट 68 तुम चेक करो चारों साइड्स आपस में इक्वल है दोनों डायगोनल आपस में इक्वल है दैट्स मीन एक ही शो होगा अपना एक ही है समझ आ गई ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹਦੇ ਇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬਣੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ अपन ने किमें देखा जे टू साइड्स का सम अगर थर्ड साइड तो ग्रेटर है तो ट्रायंगल बनूगी वरना ट्रायंगल नहीं बनूगी ठीक है टू साइड्स का सम अगर थर्ड साइड तो ग्रेटर है तो ट्रायंगल बनूगी वरना नहीं ट्रायंगल बनूगी अगर ट्रायंगल बनेगी तो केडी ट्रायंगल बनी हो कैसे पता करांगे अगर तीनों साइड इक्वल आ गई तो इक्विलेटरल ट्रायंगल है जे टू साइड इक्वल आ गई तो आइसोसेलेस ट्रायंगल है जे कोई भी साइड इक्वल नहीं आई तो स्केलर ट्रायंगल है अगर दो साइड के स्क्वायर का सम थर्ड साइड दे स्क्वायर दे इक्वल है तो किहड़ी है राइट एंगल ट्रायंगल है समझ सकी तो ये चारों वर्टिसेस नाल चेक करना है तुसी चेक करना होगा कि केड़ी क्वाड्रिलेटर है अगर कभी अपोजिट साइड इक्वल आई डायगोनल ना इक्वल आई तो पैरेललोग्राम जे अपोजिट साइड भी इक्वल आ गई तो डायगोनल भी इक्वल आ गई तो रेक्टेंगल जे कभी चारों साइड्स इक्वल आई तो रोम्बस जे चारों साइड्स इक्वल आ गई तो डायगोनल भी इक्वल आ गए दैट्स मीन की है स्क्वायर